ठीक है, अनदर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन व्हाट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? सो व्हाट इज गिवन, कंपनी नेम इज व्हाट, राव गैल्वेनाइजिंग कंपनी लिमिटेड. व्हाट? राव गैल्वेनाइजिंग कंपनी लिमिटेड had an authorized equity capital. Authorized means सबको पता है, authorized means maximum share capital, which is also known as registered share capital and nominal share capital. ठीक है, so Rao Galvanizing Company Limited had an authorized equity capital of what? Rupees 20 lakhs. Authorized equity capital कितना बेटा? 20 lakhs का है, divided into shares of rupees 100 each, जो कि किसमें डिवाइड होगा? Shares of rupees 100 each. Okay. The paid up capital. अब जो paid up capital है वो कितना बेटा? Paid up capital is what? 12,50,000. The paid up capital was 12,50,000. ठीक है. Beside this, मतलब ये तो ऑथराइज था, ये ऑथराइज दिया 20 lakhs और पेड अप कैपिटल है आपका 12,50,000. ओके. Beside this, the company had 9% redeemable cumulative preference shares of rupees 10 each for rupees 2,50,000. Means beside this company के पास 9% redeemable cumulative preference shares भी है, 10 rupees each का, और amount है 2,50,000. Okay. बराबर है. Beside this company had what? 9% redeemable cumulative preference shares of rupees what? 10 each for rupees 2,50,000. Okay. तो यही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही अपने को रिडीम करना है, रिडीमेबल है ना, तो रिडीम करना ही पड़ेगा. फिर क्या बोलता है बेटा? बैलेंस ऑन अदर अकाउंट्स, बैलेंस दिया बेटा ऑन अदर अकाउंट्स, सॉरी, बैलेंस ऑन अदर अकाउंट्स वर सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपका बैलेंस है, सिक्योरिटी प्रीमियम हैविंग बैलेंस ऑफ 28,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हैविंग बैलेंस ऑफ 72,000, general reserve is having balance of 3,40,000. Okay, ठीक है. And out of these there are P&L and general reserve, both are divisible profit. Both are what? Divisible profit. And general divisible profit is given, means in abundance सब कुछ है, दिख रहा है अपने को. जनरल रिजर्व में 3,40,000 का बैलेंस है. वाओ, वेरी नाइस. तो देखेंगे क्या कैसे यूज करना है अपने को. सिक्योरिटी प्रीमियम है, P&L and general reserve both are divisible profit. Security premium and general reserve both are what? Divisible profit. याद रखना. Now what is given? Included in sundry assets were investment of the face value of rupees 30,000. क्या बोल रहा बेटा? Included in sundry assets were investment, मतलब sundry asset में investment include है जिसका face value है 30,000, carried in the books at rupees 34,000. Means included in the sundry assets are investment of the face value of rupees 30,000 carried in the books at a cost of rupees 34,000. Okay, इसका भी देखेंगे क्या करना है अपने को. The company decided, बराबर है क्या? अभी ये ऊपर जो दिया है आपको, sundry assets were मतलब included in sundry assets were investment of the face value of rupees 30,000. जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने उसका फेस वैल्यू था 30,000, but carried in the books at a cost of rupees 34,000. Cost of 34, cost है 34 का और फेस वैल्यू उसकी 30,000 है. ओके. द कंपनी, ये भी अच्छा समय लेवल अच्छा है इसका. द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द cumulative preference shares at 10% premium. What company decided? To redeem the cumulative preference shares at 10% premium. Okay, right? Company decided to redeem the cumulative preference shares at 10% premium, partly by the issue of equity shares of the face value of rupees 1,20,000 at a premium of 10%. ठीक है. तो क्या बोल रहा बेटा? Company decided. What? Company decided to redeem the cumulative preference shares at 10% premium. तो ये जो cumulative preference shares है ना बेटा, वो कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई उसको रिडीम करेगा. और पूरे क्वेश्चन में यही तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो इसको ही रिडीम करेगा ना, रिडीमेबल है तो. ठीक है. और कौन सा करेगा? इक्विटी को तो करेगा नहीं. इक्विटी के रिडम्पशन को बोलते हैं बायबैक, वो अभी नहीं करना है. ठीक है. सो द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम पे. व्हाट? एट 10% प्रीमियम.
मतलब आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज का है, तो 10% प्रीमियम मतलब 10 का 10% 1 रुपीज एक्स्ट्रा देगा कंपनी, 1 रुपीज एक्स्ट्रा देगा ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। 10% प्रीमियम पार्टली बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कैसे करेगा, सोर्सेस क्या देखो, पार्टली बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब फ्रेश इश्यू यूज कर रहा हूं, फ्रेश इश्यू बराबर, इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1,20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो फ्रेश इश्यू करोगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ओके। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट भी आप सोल्ड करोगे एट 105% ऑफ देयर फेस वैल्यू, बराबर है, इन्वेस्टमेंट भी आप सोल्ड करोगे एट 105% ऑफ देयर फेस वैल्यू, राइट, बराबर है। तो याद रखना इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड होगा एट 105% ऑफ देयर फेस वैल्यू, तो जो भी फेस वैल्यू है उसका 105%, फेस वैल्यू आप देख सकते हो ना बेटा इधर कितना, 30,000 का 105% निकालना, जो भी अमाउंट आएगा वो उसका सेल प्राइस रहेगा, बराबर है। और प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उसके लिए आपको कॉस्ट से कंपैरिजन करना पड़ेगा, बराबर। ऐसा नहीं कि 30,000 का 105% निकाला और उसके बाद कंपेयर कर रहे हो 30,000 से, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वैसा नहीं, कंपेयर तो हमेशा कॉस्ट से ही करोगे ना, बराबर है। प्रॉफिट या लॉस का कंपैरिजन करने के लिए आपको कॉस्ट और सेल्स ही चाहिए, तो कॉस्ट है 34,000, ये 30,000 का 105% सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बताया, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन बडीज, याद रखना, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, व्हाट, ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर पेड ऑफ, सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने पेड ऑफ किया है, पेड ऑफ, पेड ऑफ, all preference share holders were paid off except 3 holders, सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया सिर्फ 3 जन को छोड़ के, एक्सेप्ट 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो कितना होल्ड करते बेटा, 250 शेयर्स, ठीक है। तो मतलब ये 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पेमेंट नहीं कर पाए, राइट, इनको हम पेमेंट नहीं कर पाए, गॉट इट, एक्सेप्ट 3 होल्डर्स होल्डिंग 250 शेयर्स, मतलब इनको हम पेमेंट नहीं कर पाए, इनको ट्रेस नहीं कर पाए, जो भी रीजन है, तो नहीं पेमेंट कर पाए तो भाई उसको अपने को एंट्री दिखाना पड़ेगा, पेमेंट इतना नहीं होगा, बाकी हमारे लिए जिनको नहीं पे कर पाया उनके लिए, उनको भाई बाद में पे करना पड़ेगा, तो अभी लाइबिलिटी हो जाएगी ना हमारी, एक तरह से करंट लाइबिलिटी कि भाई बाद में पे करना ही है, दैट्स इट। फिर आफ्टर रिडम्पशन ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन होने के बाद कंपनी क्या कर रही है, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर रही है इन द रेशियो ऑफ 4:1, रिडम्पशन के बाद कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर दे रही है, वो भी 4:1 के रेशियो में, दैट्स इट। इसी के बेसिस पे अपने को जर्नल एंट्री पास करना है, पास जर्नल एंट्रीज, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा स्टेप बाय स्टेप विल गोइंग टू पास इट, ओके, क्लियर, मालूम पड़ गया, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।